पॉइंट इस तरफ इस साइड लिख लेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग विद gametogenesis, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स, ये मैंने आपको बता दिया है दोनों का, जो प्रोड्यूस करते हैं गेमीट्स, मेल गेमीट आपका स्पर्म एंड फीमेल गेमीट आपका ओवम, ठीक है। By the process of gametogenesis. Gametogenesis basically is a process of production of gametes, human gametes, male and female each. Okay, in testes, the immature male germ cells, also called as spermatogonia, produces sperms during sperms by spermatogenesis. See, gametogenesis के भी two parts है, एक spermatogenesis है and then your sorry, and then your female part is oogenesis, starting with spermatogenesis, the production of sperms. ठीक है, चलो आओ करते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट होता है, दैट इज योर स्पर्मेटोगोनिया present on the inside wall of seminiferous tubules, multiplies mitotic division, ये भी important है बच्चे, mitotic एंड meiotic के बीच में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। Each spermatogonium is diploid, contains 46 chromosomes, ठीक है, 46 chromosomes. Then you're starting with some of the spermatogonia called as primary spermatocytes undergoes meiosis. ये माइटोसिस नहीं करती, the primary spermatocytes, okay, completes first meiotic division, leading in the formation of two equal parts called as secondary spermatozoa. ये ना मैं आपको पूरा लिख के समझाऊंगी कि कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी होते हैं, प्राइमरी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, मियोटिक जाता है, माइटोटिक जाता है, ये सब कुछ मैं लिख के समझाऊंगी। बस एक बार यहाँ पे ना रीड कर लो ताकि थोड़ा सा ना मेमोरी में आपको फ्लैश करता जाए जब हम लिखेंगे, ठीक है। Then the secondary spermatozoid undergoes secondary meiotic division in production of four equal haploid spermatids. ठीक है, what would be the number of chromosome in spermatid? ये आपको क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। Then the spermatids are transformed into spermatozoa. This process is called as spermiogenesis. After spermiogenesis, sperm's head become embedded in Sertoli cells and finally release of seminiferous tubules is process is called as spermiation. ठीक है, somatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase of secretion of GnRH. GnRH is an important hormone जिसे आप याद रखेंगे, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ आता है, इन द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH acts at the anterior pituitary gland, stimulates the secretion of two gonadotropin, LH and FSH. LH is your luteinizing hormone and FSH is your follicle stimulating hormone. LHS acts on the leading cells, helps in the secretion of androgen. Remember leading cells का बताया था कि आपका हेल्प करती है वो एंड्रोजन सिक्रीट करने के लिए। एंड्रोजन इज योर टेस्टिकुलर हार्मोन, ठीक है। एंड्रोजन stimulates in the spermatogenesis. FSH acts on the Sertoli cells and Sertoli cells का काम था nourishment का, ठीक है। Okay, here let us explain the structure of sperm. Sperm के स्ट्रक्चर में तीन पार्ट्स है, हेड, नेक एंड द टेल, ठीक है। ऐसी होती है स्पर्म, या नेक, सॉरी, द मिडिल पीस आल्सो, द मिडिल पीस एंड द टेल, ठीक है। देन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन envelops the whole body of sperm, covered by a plasma membrane, ठीक है। sperm contained and haploid nucleus, ये सी, ये ना आपको जो भी है एग्जाम वो आपको फंसाएगा हैप्लॉइड डिप्लॉइड पे, माइटोटिक मियोटिक पे एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इन सब चीजों में। तो ये बहुत अच्छे से याद करना है और ये सब कुछ ना मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। देन इट इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, acrosome. Acrosome is filled with enzyme that helps in the fertilization of ovum. This is very important. The acrosome is filled with an enzyme that helps with the fertilization of ovum. देन आता है आपका मिडिल पीस। मिडिल पीस में आपके बहुत सारे वो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, विच गिव्स फॉर्म द एनर्जी टू स्विम।
ठीक है। बाकी आपकी ये होता है फैसिलिटेट मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन इजैकुलेट about 200 to 300 million sperm during coitus, of which normal fertility is at least 60% sperms होते हैं जो healthy होता है and 40% 60% sperm must have the normal shape, size, at least 40% must have shown vigorous motility. ठीक है. Then your part is sperms. Sperms released from the seminiferous duct, secretion of this सॉरी फॉर द कट. ठीक है, आगे हम अपना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारा था. यस, हम यहाँ पे थे. स्पर्म रिलीजेस रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस डक्ट, सिक्रीशन ऑफ एपिडर्मिस, vas deferens and seminiferous vesicles, prostate glands are essential for maturation and motility of sperm. The seminal plasma, along with sperm, consists of semen. This is also important. The seminiferous plasma, along with the sperm, consists of semen. ठीक है. The function of male accessory ducts and glands are maintained by testicular hormone, that is androgen, and remember androgen कौन secrete करता था? The leading cells. ठीक है. ठीक है. चलो आगे हमारा है फीमेल वाला. फीमेल वाला हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको ही एक बार लिख लेते हैं अच्छे से. ठीक है. Here is your gametogenesis. इसे erase कर देते हैं. इफ यू नीड, मैं ना आपको अच्छे से लिख कर ही के दे दूंगी, और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी. जस्ट मैसेज मी कि आप लोगों को क्या चाहिए, मैं एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बना दूंगी. ठीक है. हेयर इज योर गेमेटोजेनेसिस. ठीक है. गेमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स. फिर आपकी दो तरह की है. चलो, starting with first is your spermatogonia, primary. हम इसको ऐसे लिखते हैं, प्राइमरी spermatocyte, then your secondary spermatocyte. ठीक है. Here your spermatogonium is 46 chromosomes, and ये तो पता है ना, 46 होंगे तो डिप्लॉयड होंगे और 23 होंगे तो हैप्लॉयड होंगे. रिमेम्बर, ह्यूमन इज योर 46 क्रोमोसोम, जिसमें 23 मदर से आते हैं और 23 फादर से आते हैं. ये तो पता होगा ना. ठीक है. देन योर वी विल स्टार्ट विद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोस मियोसिस. ठीक है. मियोसिस, पोस्ट मियोटिक डिवीजन में, this is your 46 chromosomes into 2. 23 chromosome is your secondary spermatocytes. Then this goes into 4 division, which is called as your spermatids, leads to sperms. ठीक है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. फिर यार आपका ये आ जाता है कि सर्टोली सेल्स रिलीज कराता है. सर्टोली सेल्स का काम होता है नरिशमेंट का. और स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों होती है? ड्यू टू
secretion of GnRH. GnRH is your gonadotropin releasing hormone which stimulates androgen. Leydig cell basically, your Leydig cell secretes androgen. And androgen is your testicular hormone. Important. Then आपका structure of sperm आता है. Structure of sperm पूरा sperm पूरा covered होता है seminal plasma से. Acrosome उससे energy देता है. एनर्जी नहीं मिलेगा बेसिकली. एक्रोसोम इज इम्पोर्टेंट ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके. अगर एक्रोसोम नहीं होगा ना तो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा ओपन से. देन योर फर्स्ट इज योर हेड पार्ट, देन योर नेक पार्ट, मिडल पार्ट पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, द पावर हाउस ऑफ द सेल. के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो द पावर हाउस ऑफ द स्पर्म विच हेल्प्स टू स्विम कि वो ओवम तक पहुंच पाए. ठीक है. फिर आपका एक उसमें स्पर्म्स कितने सिक्रीट होता है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स. उसमें से 60% आपके साइज एंड शेप ठीक होने चाहिए, प्लस 40% विगरसली मोटाई होनी चाहिए फर्टिलाइजेशन होने के लिए. ठीक है. फिर आपको फर्टिलाइजेशन में एक्सेसरी ये सब आते हैं. सेमिनल प्लाज्मा secretes what? Semen. ठीक है. Then maintained by the testicle. ये बहुत primary important is this, the testicular hormone also known as, बताओ कौन सा हार्मोन होता है, एंड्रोजन. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. आपका द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर गेमीट, फीमेल गेमीट, दैट इज कॉल्ड oogenesis. ठीक है. चलो, which is markedly different from spermiogenesis. Oogenesis indicates during the embryonic development stage when a couple of million gametes, mother cells is your oogonia, is formed in the fetal ovary. No more oogonias are formed added after birth. ओके. तो ये लाइन बेसिकली ये कह रही है कि ना जितने भी सारे एग्स होते हैं ना, योर दिस मदर सेल्स ओवोनिया, ये बर्थ के टाइम ही फॉर्म होते हैं. आफ्टर बर्थ ओवोनिया फॉर्म नहीं होते, बट फॉर्म्स फॉर्म होती रहती है. जितने अंडे बन गए उतने बन गए, अंडे नहीं बनते बस फॉर्म्स बनती ही रहती है. ठीक है. ये आपका एक मार्केबल डिफरेंस हो गया. चलो आगे बोलते हैं. These cells starts division and enters into phase one of meiotic division. ठीक है. Get temporarily arrested at the stage of primary oocytes. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells, also known as the primary follicle. ठीक है. प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी. कितनी ओवरीज होती है, दो बताई थी ना मैंने. पेयर होती है लेफ्ट एंड राइट साइड. Primary ovaries get surrounded by many layers of granulosa cells and new theca called as secondary follicle. Primary layer आपकी हो गई primary, sorry, first layer will be आपकी primary follicle, then your new theta is called as the secondary follicle. Then your secondary follicles soon transform into tertiary follicles, which is characterized by a fluid fill called as antrum. ठीक है. antrum भी important है. आगे चलते हैं. The theca layer is organized to draw attention. That is happening. Oh. The theca layer is organized into inner theca, internal and outer. And of the outer theca, it is important to draw your attention that it is at this stage at the primary oocyte within the tertiary oocyte, the size and completes the first meiotic division. It has an unequal
division resulting in the formation of haploid secondary oocyte and tiny polar bodies. See, tiny polar bodies जो होती है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ना एक वो बनी होगी, ये देखना, ठीक है। The secondary oocytes retain bulk and nutrients rich in cytoplasm and cytoplasm of primary oocyte. Can you think of an advantage of this? Does the first polar body bonds out of the first meiotic division, divides further or degrades? Okay, ये क्वेश्चन एड्रेस करना है, अच्छा क्वेश्चन है ये। At the present, we are not very certain about this. The tertiary follicular further makes the Graafian follicular. ये last है, the Graafian follicle. Then the secondary oocytes form a new membrane called as Zola pellucida. Surrounding it, the Graafian follicle is now ruptures and releases the secondary oocytes called as ovum. This process is called as ovulation. ठीक है। अब हम आपको अब ये देखो, ये आपका मेन है, पेन से करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग विद उगोनिया, मियोसिस, सॉरी मियोसिस नहीं, माइटोसिस से प्राइमरी फॉलिकल बनाती है। देन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से और सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंड पोलर बॉडी, इनका बेसिकली कोई काम नहीं होता डिवीजन में, ठीक है। देन ये सेकेंडरी oocyte मेक्स द ओवम विच इज योर फीमेल गेमीट, दैट इज ऑफ 23 क्रोमोसोम। सी ये ना बहुत सारा लिखा हुआ है, इतना नहीं पढ़ना, बस याद क्या रखना है। उगोनिया, ये आपके इसने डिवाइड करे दो में, ये आपके प्राइमरी oocytes, ठीक है। अब एक ही जाएगा बस सेकेंडरी में, ये बन गया आपका सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte के साथ बन गया सेकेंडरी पोलर बॉडी, जिसका कोई काम नहीं है। सेकेंडरी oocyte से बन गया ओवम। तो बस आपको ये याद रखना है, उगोनिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte एंड ओवम। ओवम इज द फीमेल गेमेट, बस और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। एक बार और देखिए, उसमें कुछ है तो नहीं। oogenesis, oogonia, goes from surface one, meiotic division, temporary। एक चीज और याद रखनी है, 60,000 to 80,000 प्राइमरी follicle, then your secondary follicle। फ्लूइड फिल्म कैविटी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। एंट्रम, ये थोड़ा सा ध्यान रख ले बस, और कुछ ध्यान नहीं रखना। देन योर ये बेटा, ये ना सेकेंडरी फॉलिकल के बाद का लास्ट वाला जो है ना, वो ग्राफियन फॉलिकल है। तो बेसिकली लाइक oogenesis में ना दो चीजें याद रखनी है, दैट इज योर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। फ्लूइड फिल्म कैविटी एंट्रम होती है और प्राइमरी फॉलिकल 60,000 to 70,000 होते हैं, ठीक है। और ये जो है लास्ट oogenesis, प्राइमरी oocyte फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte सेकेंड पोलर बॉडी। 23 क्रोमोसोम दोनों में होते हैं, उगोनिया में 46 क्रोमोसोम होता है, इसलिए वो दो में सेपरेट होती है, 23 23। तो ये डिवाइड करता है फोर्थ पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, फोर्थ प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवम। बस खत्म, और कुछ ध्यान नहीं रखना, ये बहुत सारा लिखा है जिसको जोड़ा, ठीक है। देन योर थर्ड इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, इससे तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ओके, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस जर्नी विद मी। प्लीज शो योर लव विद योर फीडबैक्स, कमेंट कीजिए आपको कैसा लग रहा है ये, ठीक है। और अगर आपको किसी भी नोट्स की जरूरत है, हैंड रिटन या फिर यही सब और रिकॉर्डेड लेक्चर, यू कैन जस्ट कमेंट माय चैनल, ड्रॉप अ मैसेज if you want a telegram group, WhatsApp group, anything. Okay, thank you.